So this is the ANSYS FEDL. So this is the first version of ANSYS. Okay, जो भी आपके गाइड्स या पुराने लोग जो 1960 से सॉफ्टवेयर चला आ रहा है, तो इसमें कैसा रहता था कि एक कोई एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं, तो दिस इज 2D एलिमेंट, 3D एलिमेंट, these all elements are taken from the this finite element analysis. For example, now this is the 3D element. Okay, this is the 3D element. इसमें ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स, टाउ ए, जेड वाई वगैरह ये सारी वैल्यूज है, ये इक्वेशन है उसका. ओके, उसमें फिर नॉर्मल शियर स्ट्रेन, सॉरी प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, ये ऐसा रहता है. ओके, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, ये सिग्मा जेड इज इक्वल टू म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये सारे इक्वेशन है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको आपके ANSYS लाइब्रेरी में एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ता था. ये पुराना मेथड था. जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ हाउ इट वाज वर्किंग प्रीवियसली. तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट्स है. ओके, बट अभी कैसा होता है, ये इसमें एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है. पहले हम ये एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, then we give the material properties. Okay, so material property क्या रहता है, जैसे कंक्रीट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारी मेटल्स के अलॉयज है. तो उसमें 4 चीजें मेनली हमें चाहिए रहती है टू डिफाइन एनी प्रॉब्लम इन ANSYS. पहले रहेगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E. ओके, देन पॉइजन्स रेशियो, modulus of elasticity, Poisson's ratio. Then next is density. Okay, then grade means tensile properties, tensile strength, compressive strength. So these kind of physical properties we need to give in the ANSYS here. Click on the material models. Okay, material model number 1, structural linear properties as well as non-linear properties. Here Ex means modulus of elasticity in x direction. Prxy is the Poisson's ratio in xy plane. So likewise, this is the density value. You need to give the all the material properties. Then there is sections. Here we do the modeling and all. Then meshing. Okay. तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये पुराने वर्जन में इसमें अनडू का ऑप्शन नहीं है. मींस सपोज आई हैव क्रिएटेड some structure. Okay, अभी इसमें मैंने कुछ वर्क किया वगैरह, अभी उसमें कुछ गलत हो गया, तो what I have to do, I have to start from the scratch because there is no option of undo. And modeling in this, it is very difficult. So to overcome that, software developers ने क्या किया कि एक नया वर्जन लाया इसका, so that is called as ANSYS workbench. तो इसमें हम thoroughly काम करेंगे. This is our ANSYS workbench. So click on the workbench. Currently ANSYS 21 is going on. There is no such a difference in that. बहुत सारी features same है. Okay. Okay. So here is the ANSYS workbench on which we are going to complete our course. So here design assessment is there, eigenvalue buckling, electric, explicit dynamics, fluid flow, polyflow. Then this is the CFD part. It is only for the mechanical engineering students.
and this is harmonic response. Modal analysis is there. It is a common part. Then random vibration analysis, rigid dynamics, static structural. There are like 10 to 12 parameters we are going to cover in the period of time. Okay. So let's start. So what I will do, I will take directly one validation problem, and we will match the value of ANSYS with the these practical values and ANSYS values we are going to match here. There is one manual given by ANSYS team itself. I will share this file in the group. Just hold on a second. So this is the file verification manual. I will be sharing this in the group. ठीक है ना? तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, तो उसके खुद का एक वेरिफिकेशन मैनुअल रहता है, that how can you trust the values given by the software. So what they did, they provide some actual problems, and you can try and match the actual problem and means your mathematical values and these values that you can match. Okay. So we are going to do this rectangular plate with circular hole subjected to tensile loading. That the same problem given in the SS Bhavigatti. तो हमें ऐसे ये मॉडल दिया है, इसमें ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है E, म्यू, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, थिकनेस, इसमें होल कितना है, ठीक है ना, और प्रेशर कितना अप्लाई किया है. तो ये दो सेशंस में हम डिवाइड करेंगे. आज ये पूरा इसका इनपुट लगा के इसका वैल्यूज में निकालूंगा. ओके. और एक बार नेक्स्ट सेशन में आपको प्रैक्टिस करके खुद ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. गो टू ANSYS. ओके. Here it is mentioned that a rectangular plate with circular hole is fixed. So one end is fixed, one end is free. Here the pressure is applied. Okay. So 10% allowable change is allowed. Okay.
and the hole is of radius 0.5. So go to this, click on static structure. Okay, go to engineering data. So first of all, we need to see what are the properties we need to give. E is 1000. So it is a steel plate. Okay. E is given, mu is given. This is 1000 Pascal. And mu is given 0. Rest properties we will take as it is. Okay. So first part is done, engineering data. Then we need to create a geometry. So for geometry, double click on the geometry. XY plane is there, ZX plane, YZ plane. हे मी तुम्हाला नंतर एकदा सांगतो, ठीक आहे? त्यानंतर सेशन मध्ये. So first for 2D plan, we need to select the which plane we need to sketch. So we will select the XY plane because we need to model like this, a square, and then we need to put a 3D modeling in there. So select XY plane. XY plane. Give this length 15 meter, width is 5 meter. Go to sketching. Like in AutoCAD, there are some options: line, polygon, which shape you want, which size you want. According to that, select this toolbox. इस ड्रॉ के नीचे टेंजेंट लाइन है, पॉलीलाइन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है. लेकिन अभी जनरली प्रैक्टिस क्या होता है कि ये जो मॉडलिंग है ये कटिया या सॉलिड वर्क्स में होती है, फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है. सो हाउ टू इंपोर्ट दैट ज्योमेट्री, दैट विल आई आल्सो टीच यू. ओके, तो वो इजी आ जाता है, उसमें कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट अच्छे से होते हैं. सो क्लिक ऑन रेक्टेंगल्स. फर्स्ट ड्रॉ रेक्टेंगल. ऑटोकैड और इसमें क्या फर्क है? ऑटोकैड में हमें पहले डायमेंशन देना पड़ता है, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं. लेकिन इसमें कैसा होगा, पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डायमेंशन देंगे. हाउ इट इज आई विल टेल यू. I have drawn this rectangle. Click on dimension. Okay. So here H and V, these two sizes you can see. Okay. So click on H, means horizontal size. So that is 15 meter and vertical is 5 meter. This is 15 meter and this is 5 meter. Okay. So this is our rectangular plate. This is 2D sketch. Now we need to convert this into 3D. Okay. तीसरा dimension हमें इसमें देना है. So there are 4 options are there to convert this into 3D modeling. Extrude is there. Extrude में क्या होगा? This will stretch along Z direction as per the thickness. So यहाँ thickness दिया है 1 meter. Okay. So pay attention to this. This is the XY plane we have done. एक sketch हमने draw किया है, उसको ANSYS में model दिया है कि sketch 1. Then click on the extrude. Click on apply. Okay. Then here depth option is given. Depth मतलब thickness.
So it is by default 1. अगर 2 रहेगा तो 2 देंगे, 1 रहेगा तो 1 देंगे. So this is 1. Click on generate. ओके, सो ये जो है ये 3D ये हो गया है. अभी इसमें कैसा करना है कि होल करना है हमें. वी नीड टू पुट अ होल. तो ये होल सेंटर में रहेगा और उसका रेडियस दिया है 0.5 मीटर, मतलब उसका डायमीटर 1 मीटर. ओके, सो अभी एंसिस में ध्यान रखना है कि अभी एक ज्योमेट्री में अगर कोई दूसरा ज्योमेट्री आपको करना है, देन वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्लेन. ओके, सो हियर इज न्यू प्लेन इज देयर. क्लिक ऑन न्यू प्लेन. ओके, अभी होल कहाँ करना है हमें? ऑन दिस फेस. सो दिस फेस इज, यू कैन सी दिस इज xy face is there. So there are 4 to 5 types are there: from face, from centroid and all. So click on from face, select this base face, apply, generate. ओके, तो अभी कैसा रहेगा कि जो भी हम ड्रॉ करेंगे ना वो इसमें ही रहेगा. ठीक है ना? तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ सर्कल हियर. एक सर्कल मैंने बना लिया टेंटेटिव. Click on dimension, click on radius. Okay, so it is 0.5. Okay, so this is the radius. अभी ये कहाँ है? ये exactly center में है. So we need to fix its position. Click on length slide distance. Click on this vertical edge and click on this. Here आपको एक dimension मिल जाएगा कि ये dimension कितना है. So it is half of 15 meter. It is 7.5. Okay. अब ये यहाँ से सेंटर में आ गया. यहाँ से भी एक लेना पड़ेगा. It's 2 point. Okay. Now it is exactly in the center. Okay. अभी इसको कैसा है कि ये होल करना है ये साइड से. एक्सट्रूड, अप्लाई, सेम. लेकिन अभी यहाँ एक ऑप्शन है ऐड मटेरियल एंड कट मटेरियल. ओके, तो क्लिक ऑन द कट मटेरियल. ये थोड़ा फास्ट हो गया, ये फिर से बता दूंगा. ये देखिए होल हो गया. Go to sketching. First, create a new plane. Select value from face. Apply, generate, sketching. Create a circle. Length dash distance.
7.5, 2.5. Go to modeling. Now similarly, select this sketch, click on extrude, click on apply, then here click on cut material like this. Generally. So as per the requirement, all things are done. This you are seeing the inputs. पहला input क्या दिया हमने, material properties. Second input दिया geometric properties, modeling. Third input is loading and the fixed support. Okay, so minimize this. यहाँ दिख रहा है आपको, this green tick indicates the inputs are right. If there is something missing, it will appear as the question mark. So we have given the engineering data, we have prepared the geometry, we have minimized this window, and we need to give the pressure and the fixed support. So click on model. Okay. So अभी ये विंडो का मैं बता देता हूँ कैसा रहता है कि यहाँ हम कोई भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है सॉरी। यहाँ डिस्क्रिटाइजेशन होगा, यहाँ फोर्स और फिक्स सपोर्ट अप्लाई होगा, और तीसरी चीज यहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, ये जो फाइनाइट एलिमेंट का मैंने दिखाया था आपको, SS भाविकट्टी के बुक में जो प्रोसीजर दिया है ना कि पहले आप ज्योमेट्री बनाओगे, ज्योमेट्री हमने बना दिया, उसमें आप मटेरियल प्रॉपर्टीज डालोगे, वो डाल दिया, उसके बाद उसका डिस्क्रिटाइजेशन होगा। तो यहाँ डिस्क्रिटाइजेशन होने वाला है, तो उसे हम एनसिस में कहते हैं मेशिंग। ओके, तो एक मेशिंग का मैं सेपरेट सेशन लूंगा। मेशिंग में 7 से 8 टाइप का सेशन मेशिंग रहता है कि अभी ये देखो, ये टोटल मेशिंग में गया, मैं जनरेट मेश क्लिक किया तो ये आ गया। सर एक बार फिर से बताना, कहाँ क्लिक किया आपने, एक बार फिर से बताओ ना सर। ये फिर से बताओ क्या सर? हाँ, ये वाला मेशिंग वाला फिर से बताओ। ओके, ठीक। हाँ, तो यहाँ मॉडल पे डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ज्योमेट्री पे क्लिक करके मॉडल्स दिखेगा। अभी देखो आपने एक सिंगल टिक है, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और यहाँ येलो टिक है मेश का। मेश मतलब रहेगा कि डिस्क्रिटाइजेशन, इसको ये जो ज्योमेट्री है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये डिवाइड होगा, नंबर ऑफ नोड्स में ये डिवाइड होगा, फिर उसमें प्रेशर और फिक्स सपोर्ट डालने के बाद उसको आपको रिजल्ट्स मिलेंगे सर। ओके, तो यहाँ मेश में राइट क्लिक किया मैंने और जनरेट मेश। ठीक है, तो ये मेशिंग हो गया इसका। अभी स्टैटिस्टिक्स में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखेंगे कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। सो देयर आर टोटल 254 एलिमेंट्स एंड 1629 नोड्स आर देयर। नोड म्हणजे काय असतं? हाँ, तो ये बता देता हूँ एक बार, एलिमेंट क्या रहता है और नोड क्या रहता है। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, F इज इक्वल टू KU, जैसे वो बुक में बताया था। इसमें जो नोड्स रहेंगे ना, तो एक नोड एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम माहिती तुम्हाला काय असतं? ट्रान्सलेशन, रोटेशन, हे मूवमेंट माहिती आहे? नाही ठीक आहे ना, घेऊन आता. हो हो,
सो नोड्स क्या रहते हैं एक बार मैं फिर से बताऊं तो कि in physics or in reality there are 6 movements are there. Okay, x y z translation मतलब एक तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या फिर वो गोल घूमेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना. तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो उसके लिए फिर 6 इक्वेशंस हमने बनाए. ओके, तो जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन असते त्या नोड जो असतो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेझेंट करतो. ओके, ते बुक मी शेअर करेल, एकदा रीड करा तुम्ही, तेव्हा मग तुम्हाला ते क्लिअरिटी येईल. ओके, म्हणजे फक्त सॉफ्टवेअर शिकून फायदा नाहीये, त्याचं जे बेसिक्स आहे. आता मी कसं करतो की कोणत्याही गोष्टीला बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये बघायचं, तो एक्झॅक्टली सॉफ्टवेअर कसं वर्क करतो. ठीक आहे ना. आता कटिया सॉलिड वर्क्स त्याच्यात कसं असतं म्हणजे जॉमेट्री बनवायची असते, त्याच्यात काही लॉजिक नसते. याच्यात प्रॉपर लॉजिक आणि ते इक्वेशन्स कसं होतं, कारण याच्यात सीएफडी मध्ये तेच आहे की ते लॅमिनार फ्लोटाचे इक्वेशन्स आहेत, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरे त्याच्यावर ते काढलेले असतात. ठीक आहे. तो एनीवे तो ये हो गया मेशिंग. मेशिंग का मैं एक और अलग से सेशन लूंगा. ठीक है. सो गो टू दिस स्टैटिक स्ट्रक्चरल इंसर्ट. हियर आर द थर्ड दिस प्रेशर और फिक्स सपोर्ट, ये दोनों है आपको देने. तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. तो ये एक फिक्स सपोर्ट रहेगा और एक ये प्रेशर रहेगा. तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल इंसर्ट फिक्स सपोर्ट. ठीक है. तो हियर आई हैव गिवन द फिक्स सपोर्ट. तो जहां आपको सपोर्ट देना सिर्फ वो पार्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा लाइक दिस, है ना. दिस ग्रीन कलर इंडिकेट्स दिस पार्ट इज सिलेक्टेड. ओके, क्लिक ऑन अप्लाई. राइट. हाँ, एक और चेंज, कैन यू सी दिस, अभी एक ग्रीन टिक और यहाँ एक क्रॉस हो गया, मतलब ये इसका मेशिंग होने के बाद ये ऑप्शंस आते हैं. ठीक है. So this is fixed support we have given. Then here we need to apply a load. Okay, so static structural insert, pressure, click on this. Problem statement ने कैसा दिया है कि 100 Pascal minus 100 Pascal. So this is x direction, minus means along this direction. Apply. सर वो लोड कॉम्प्रेसिव है क्या टेंशन है, कैसे पता लगेगा सर? माइनस है मतलब कॉम्प्रेसिव है सर. ओके ओके ओके, यहाँ दिया है ना माइनस 100 पास्कल. ये एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इधर. वो मतलब एनसीस नहीं बताएगा, जो एज पर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट रहेगा. अभी जैसे डैम का प्रेशर ये साइड में रहेगा, है ना. तो वो डायरेक्शन हमें देना पड़ेगा सर. ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये फोर्स. ये माइनस 100 हो गया, मतलब ये टेंसाइल हो गया ऐसे लाइक दिस. ओके, ऑलरेडी वी हैव सिलेक्टेड द फेस डायरेक्शन, इट इज सो शोइंग इनवर्ड. माइनस 100 डाल के वो टेंसाइल होगा ये साइड. ओके. Then next we need to click on static structural, click on solve. So now it is solving the equations. There are like thousands of nodes are there. For each node there will be one equation. So like there will be, for smallest problem there will be 15 to 20,000 equations will be there. Okay, now the problem is solved. Why I can say this? Because green tick is there. Click on solution, insert deformation, total deformation. Okay, so you can see the stress contour. This color showing the actual values. मतलब ये red है, यहाँ सबसे ज़्यादा deformation है. Okay. जहाँ green है वहाँ का values है, जहाँ blue है वहाँ 0 है ना.
या फिर वी कैन क्लिक ऑन प्रोब, तो कोई भी एक पॉइंट का हम वैल्यू देख सकते हैं कि वही जैसे एट दिस एंड आई नीड टू चेक द वैल्यू, है ना, तो ऐसे वो वैल्यू दे देगा. नाउ द थिंग इज टुडेज aim is to find out the accuracy of our work, है ना. तो maximum normal stress x direction it is 312 to 350. तो अपना कितना आता है हम देखेंगे. Here go to solution, insert stress, so it is normal stress along x direction. Maximum so these are values we are getting. Okay. हाँ, तो ये वैल्यूज हमें मिलते हैं इधर. ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा है. इट शुड बी अराउंड 300. ये डायरेक्शन चेंज करके देखिए. तो अगर वैल्यूज मैच नहीं होती है तो 3 पैरामीटर्स रहते हैं. एक तो मटेरियल प्रॉपर्टीज रॉन्ग है, डायमेंशन रॉन्ग है, या फिर ये गलत है उसका, क्या कहते हैं उसका, मेशिंग गलत है. ये 3 चीजें रहती है. अगर मैशिंग तो हम अमेंड कर नहीं सकते, मैशिंग तो सिस्टम जनरेटेड ही है. नहीं, मेशिंग हम चेंज कर सकते हैं ना सर. इधर मेशिंग, इंसर्ट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ रिफाइनमेंट वगैरह. ओके, तो मैशिंग ऑप्टिमाइजेशन भी होता है ना सर? हाँ, ऑप्टिमाइजेशन भी होता है. आई थिंक वो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हमने किया ना, उसकी वजह से ही हुआ होगा. न्यू मटेरियल लेना चाहिए. ये देखिए अभी कैसा हुआ कि ये रिफाइनमेंट हो गया. ओके, मेशिंग साइज चेंज हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वैल्यूज में. तो ये 100% जो मटेरियल प्रॉपर्टी हमने लिया ना, वो उसका चेंज करना पड़ेगा. ये देखिए अभी we have changed the meshing, the size, this results are changed from like from 180 to 22. Okay, so meshing is very very important in the analysis. और हम जितना इसको फाइंड करेंगे उतना उसका रिजल्ट ये रहेगा. इधर कोर्स, मीडियम, फाइन ऐसे ऑप्शंस है.